गाइस आज एक वीडियो दिखाता हूँ, एक वायरल वीडियो दिखाता हूँ जो एक इंडियन बंदे की वीडियो है जो कैलिफोर्निया से वापस गया है, अमेरिका से वापस आया है, पंजाब प्रॉब्ली इंडिया। और वो कंप्लेंट कर रहा है कि अमेरिका का हेल्थ केयर बहुत ही घटिया था और उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया, और ओनली वन रीज़न, ओनली बिकॉज ऑफ दिस बिग रीज़न हेल्थ केयर की वजह से वो वापस इंडिया आ गया। पहले वीडियो देखते हैं फिर आगे बात करते हैं। Sanjam, you were at UCLA, you were working in private equity, you were living in Beverly Hills. It's the American dream. Why did you move back to Punjab? One word. Healthcare. Let me explain using two very simple examples. I've broken my wrist twice in my life. Once was in India and once was in the US. In India, it was in 2017. I was playing a basketball game, broke my wrist. My coach literally dropped me off at the hospital, went back, didn't speak to anyone. I went to the reception myself, got a nurse look at me immediately, got a doctor looking at me immediately, put me in a cast ASAP. They took care of me first and asked questions later, asked my documentation later, asked for all these details after they helped me out. There was zero mental stress. The only agony I was in was physical because of the pain. In the US, very similarly, I was playing basketball. I broke this finger in my palm, the fifth metacarpal. I had to wait 2 whole days before a doctor or a nurse even looked at my hand. They didn't even treat it. They just diagnosed it, put me in a very temporary cast that I had to change every day with only one hand. Now, I had insurance at this time. It was about $1,000 every semester. It was one of the best in the country. Went back the next day to have the nurse look at it and please retie it for me. She asked me if I have an appointment. When I said no, she told me to get the hell out of the office. This was in end of April. Guess when the first available online appointment was? Second week of July. So you want me to wait over 2 months to have my fracture looked at? Bro, it's sara tedda meda jud jana. What the hell am I going to do with my hand after that? So I had to find a loophole. So I woke up at 7 a.m. 3 days in a row to find a night clinic appointment, which is the only available way to get a same day appointment. And only then, after about 10 days of having an uncured, unprotected fracture on my hand, was I able to actually see a doctor and get it fixed. So y'all can keep arguing about why the US is so much better and there's so many more amenities and the weather is so nice. I would never live there. So that's my number 2 reason for moving back to Punjab. Number 1, still अमृतसरी कुलचे। थैंक यू भाई ये वाली वीडियो बनाने के लिए। तूने ये वाली वीडियो बनाई, आज इस बारे में डिस्कस करते हैं क्योंकि ये बहुत ही बायस्ड वीडियो है। मैं अच्छा ही बताऊंगा इंडिया की हेल्थ केयर की और अच्छा ही बताऊंगा अमेरिका की हेल्थ केयर की और इस बंदे ने क्या क्या गलती करी। सबसे पहली बात, आई एग्री, इंडिया में अपॉइंटमेंट्स नहीं चाहिए होती या फिर बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। आई एग्री। इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका में नहीं होता ऐसा। इसको पता ही नहीं कैसे काम करता है अमेरिका का हेल्थ केयर। तो अब मैंने ऐसा क्यों बोला ये बहुत बायस्ड वीडियो है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स बोल रहा है ना, गलत पॉइंट्स बोल रहा है। ये बोल रहा है कि अमेरिका में अपॉइंटमेंट नहीं मिली मुझे 2 दिन तक। इस भाई को अर्जेंट केयर और इमरजेंसी ईआरस का नाम नहीं पता, इसको नहीं पता कैसे काम करते हैं ईआर रूम्स, इमरजेंसी रूम्स या अर्जेंट क्लिनिक। वो बने इस काम के लिए कि आपको बहुत ही अर्जेंट कुछ है, अपॉइंटमेंट नहीं है, तो यू शुड गो राइट नाउ। और अगर आपका नॉर्मल सा फ्रैक्चर है, अर्जेंट क्लिनिक जाओ, कम पैसे में काम हो जाएगा। अगर आपका बहुत गंदा फ्रैक्चर है कि बोन निकल गई, बाहर ही निकल गई स्किन से, समझ लो लाइक बहुत ही इमरजेंसी है कि बहुत ही बुरी हालत है राइट नाउ, ईआर चले जाओ। 24 घंटे खुलता है ईआर। हो सकता है इसको रात को चोट लगी हो, ईआर चला जा, 2 दिन वेट मत कर। इसका एक कमेंट पढ़ाता हूँ आपको। उस कमेंट में ये बोल रहा है कि एक किसी बंदे ने इसकी वीडियो पे कमेंट किया, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड द ईआर, यू आर सपोज टू गो। तो उसको बोल रहे हैं एंड वेट 6-7 आवर्स बिफोर सीइंग अ डॉक्टर, आई सॉ दिस हैपन विद माई फ्रेंड हु ब्रोक मच लार्जर बोन, नो थैंक्स। तो बेसिकली ये बंदा 6-7 घंटे वेट करने को तैयार नहीं था ईआर में, बट ये 2 दिन वेट करने को तैयार था क्योंकि इसको 2 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिली। स्टूपिडिटी, कुछ समझ हजम नहीं हुई ये बात मुझे, क्योंकि 6-7 घंटे वॉज स्टिल शॉर्टर देन 2 दिन। एंड 6-7 घंटे नहीं लगते ईआर में अनलेस दैट्स ऑक्यूपाइड, अनलेस कोई बंदा मर रहा है ऑलरेडी राइट नाउ, उसका हार्ट अटैक आया हुआ है, किसी को कुछ बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है अभी तुमसे पहले, तो उसको ट्रीट कर रहे हो एंड हॉस्पिटल इज़ फुल राइट नाउ। ऐसे केस में दूसरे ईआर चले जाओ, 10-15 मिनट की ड्राइव पे दूसरा ईआर भी आ जाएगा। और हर ईआर फुल नहीं होता, हर ईआर में लोग मर नहीं रहे होते हैं अमेरिका में रोज़, तो बहुत सारे ईआर खाली पड़े होते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू शुड हैव डन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत ही बायस्ड वीडियो है ये, क्योंकि इसको कुछ खुद ही को नहीं पता कैसा काम करते हैं ईआर या फिर अर्जेंट क्लिनिक अमेरिका में, और गालियाँ दे रहा है कि अमेरिका का बेकार है। आई एग्री, अगेन मैं फिर से एग्री कर रहा हूँ, इंडिया में अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी मिलती हैं, पर ये नहीं कि अमेरिका में नहीं मिलती। आपको तरीका यूज़ करना आना चाहिए। एक कमेंट और पढ़ाता हूँ, ये प्रदीप का है। इसकी वीडियो पे कहता है साउंड्स लाइक एन HMO विक्टिम जनरलाइजिंग। अब बहुत सही मुझे लग रहा है सुनने में, क्योंकि ये HMO यहाँ पर ना बहुत सस्ती इंश्योरेंस होती है बेसिकली। और ये कह रहा है ना मेरे पास बेस्ट इंश्योरेंस थी, $1000 सेमेस्टर इज़ बेसिकली 3 महीने के $1000 देता और बेस्ट इंश्योरेंस है। घटिया इंश्योरेंस है, 3 महीने के $1000, प्रॉब्ली $300 1 महीने के। मैं $1500 1 महीने के देता हूँ। मेरे पास बेस्ट इंश्योरेंस है, जो लाइक वन ऑफ द बेस्ट इंश्योरेंसेस मेरे पास है। $1500 देता हूँ मैं 1 महीने के, ये $300 1 महीने के दे के बोल रहे बेस्ट इंश्योरेंस। तो प्रॉब्ली HMO ही है, तो जो सस्ती इंश्योरेंस होगी इसके पास कोई।
दूसरा कमेंट वरुण का, अमेरिकन हेल्थ केयर हैज़ क्वालिटी, दे हैव द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन द वर्ल्ड। और इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ कि टू थिंग्स, जैसे इसने बोला ना वन वर्ड कि हेल्थ केयर के लिए मैं वापस जा रहा हूँ, मैं टू वर्ड्स के लिए बोलता हूँ कि यहाँ पर हेल्थ केयर क्वालिटी एंड कंसिस्टेंट है यहाँ पर अमेरिका में, जो इंडिया में नहीं है। इंडिया में अच्छे हॉस्पिटल में अच्छी हेल्थ केयर है और बेकार हॉस्पिटल में बहुत ही घटिया हेल्थ केयर है, क्वालिटी है। यहाँ पर आपको कहीं नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको कंसिस्टेंट मिलेगी। चाहे आप किसी यहाँ के किसी गांव में भी जा रहे हो ना, जो कंट्री साइड जगह पे भी जा रहे हो अमेरिका में, तो भी आपको बहुत बढ़िया हेल्थ केयर मिलेगी, क्वालिटी मिलेगी वहाँ पर, जो इंडिया में नहीं मिल सकती आपको। आखिरी कमेंट पढ़ाता हूँ। ये बंदा बोलता है अवनीत, आवर कंट्री में हैव लॉट ऑफ फ्लॉज बट नथिंग इन द वर्ल्ड बीट्स प्राइवेट इंडियन हेल्थ केयर। तो उस पर रिप्लाई करता है, देयर इज़ द रीज़न इंडियन हेल्थ टूरिज्म इज़ सच अ लार्ज इंडस्ट्री। अब इसमें लोगों को मिसकंसेप्शन है कि लोग बाहर के देशों से इंडिया आते हैं हेल्थ केयर के लिए तो बेस्ट हो गया। बेस्ट नहीं है, चीप है, इसलिए आते हैं लोग। वो चीज़ों के लिए आते हैं जो यहाँ पे सस्ती हो जाती हैं और जो उनके देश में महंगी होती हैं। जैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट, बहुत ही फेमस एग्जांपल, जो हर कोई बोलता है कि अमेरिका से NRIs आते हैं रूट कैनाल के लिए इंडिया, क्योंकि डेंटल इंश्योरेंस में रूट कैनाल बहुत महंगी पड़ती है अमेरिका में, इसलिए वो इंडिया जाके ट्रीट कराते हैं, सस्ते में काम हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड इंडिया से भी हेल्थ केयर टूरिज़्म होता है अमेरिका में और बहुत देशों में, बट ओनली रिच पीपल कैन अफोर्ड। जैसे फिल्म एक्टर्स, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस, वो जाते हैं अमेरिका या फिर दूसरे देशों में अपना ट्रीटमेंट कराने, क्योंकि इंडिया में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो वाली ट्रीटमेंट वहाँ पे मिल पाए, इसलिए वो हेल्थ केयर टूरिज़म होता है दूसरे देशों में इंडिया से। यू गेट द डिफरेंसेस कि जब अमेरिका से लोग इंडिया आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो चीप होता है इसलिए आते हैं, पर जब इंडिया से बाहर जाते हैं ओनली रिच पीपल गो, क्योंकि वो वाली ट्रीटमेंट इंडिया में नहीं मिल पाती उनको। एक बड़ा सा कमेंट और पढ़ाता हूँ, और ये वाला सुनो आप। वी अभय बोलता है, both has their pros and cons. Obviously, India and America both has pros and cons. The biggest benefit of the US healthcare is that if someone shows up with an emergency like stroke, heart attack, that needs surgery done right now, they would not hold treatment to wait for the money, which is what happens in India. Unless you deposit fees, etc. upfront, these treatments are not provided. बिल्कुल सही बात बोली इसने कि अगर इंडिया में आप चले जाओ, हार्ट अटैक आया है किसी को फैमिली में, बहुत ही इमरजेंसी है, अभी की अभी ट्रीटमेंट करना है, तो अपॉइंटमेंट मिल जाएगी आपको। मैं अपॉइंटमेंट वाली बात से एग्री कर रहा हूँ मैं, पर वो पैसे मांगेंगे आपसे पहले, और अगर आपके पास पैसे नहीं है, डन, बंदा ख़त्म है। अमेरिका में अपॉइंटमेंट भी मिलेगी ER में, आपकी लाइफ भी बचाएंगे वो, और पैसे तो मांगेंगे ही नहीं, पैसे मांगेंगे बाद में, पहले आपकी लाइफ बचाएंगे वो, पहले आपको ज़िंदा कर देंगे, वो खड़ा कर देंगे आपके पैरों पे, फिर बोलेंगे लो भाई आपका ट्रीटमेंट हो गया, इतना बिल है, अब ये बिल आप चाहे पेमेंट बनवा लो, चाहे आप इंश्योरेंस ले लो, उससे डील कर लो, जैसे मर्जी कर लो, पेमेंट आपके बाद की सेकंड प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी आपकी लाइफ है, जो कभी इंडिया में नहीं होता। कुछ वीडियोज़ और शेयर करता हूँ आगे आपके साथ, जो आपको कंपेरिजन करने में काम आएगी कि इंडिया का हेल्थ केयर कैसा और अमेरिका का कैसा है। देखते हैं। हॉस्पिटल के अंदर जाइए, बेड्स की कैटेगरी देखिए, डिलक्स, प्रीमियम, स्वीट, इनका रूम रेंट कई बार 5 स्टार होटल से भी ज्यादा होता है। आपसे पहला सवाल पूछा जाता है, इंश्योरेंस है? जैसे ही जवाब हाँ होता है, मीटर चालू हो जाता है। कमरे में पहुंचते ही थर्मोमीटर, डिस्पोजेबल ग्लव, मास्क, सैनिटाइजर, सब कुछ बिल में जोड़ दिया जाता है। जेनरिक की जगह महंगी ब्रांडेड मेडिसिन्स लिखी जाती हैं, जो बाहर 15 to 20% डिस्काउंट पर मिलती हैं, लेकिन हॉस्पिटल में पूरी कीमत पर बेची जाती हैं। हम डॉक्टरों के इलाज पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हमारी जिंदगी बचाते हैं, वो भगवान समान है। डायग्नोस्टिक टेस्ट बिल्कुल जरूरी हो सकते हैं, लेकिन कई बार हॉस्पिटल्स के दबाव में बढ़ा चढ़ाकर लिखे जाते हैं। नर्सिंग चार्ज, डॉक्टर विजिट फी, रूम रेंट, सब कुछ इतना महंगा। बिल ट्रांसपेरेंट नहीं होते, बल्कि उनमें हिडन चार्जेस और अनएक्सप्लेन्ड फीस होती हैं। इंश्योरेंस कंपनियां भी इससे अलग नहीं हैं। प्रीमियम इतना बढ़ रहा है कि लोग पॉलिसी लेकर भी छोड़ने पे मजबूर हैं। ऊपर से कंपनीज छोटी छोटी बातों पर क्लेम्स रिजेक्ट कर देती हैं। नतीजा, हर साल लाखों परिवार कर्जे में डूब जाते हैं। तो मानो घर की बचत, गहने, जमीन, सब कुछ बेचने की नौबत आ जाती है। ये कोई लड़की प्राइवेट हॉस्पिटल की रियलिटी बता रही है कि देखो, आप लोग बोलते हैं कि यहाँ पर इंश्योरेंस भी तो महंगी होती है ना, प्रीमियम भी तो जाता है हर महीने, इंडिया में भी जाता है। वो इसने भी बताई वो बात कि वो कितना महंगा होता जा रहा है। दूसरी चीज़ जो इसने बताई कि अननोन चार्जेस होते हैं, जो आपको पता ही नहीं होते, चार्जेस, झूठे चार्जेस होते हैं बिल पे, जो आपसे लूटे जाते हैं, राइट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर। अमेरिका में ऐसा नहीं होता, अमेरिका में बिल्कुल ट्रू चार्जेस होते हैं। अगर हिडन चार्जेस है ना, कोई अगर अनएक्सपेक्टेड चार्जेस हैं, तो अगर कोई बेईमानी कर रहा है डॉक्टर या हॉस्पिटल,
वो इलीगल है वो काम, और उसके ऊपर केस हो जाता है बाद में, उसको पकड़ लिया जाता है उन डॉक्टर्स को, ये वो काम इलीगल है अमेरिका में। ये भी फ़र्क है, सिर्फ अपॉइंटमेंट से सब कुछ नहीं होता ना गाइस। मैनेजमेंट कहता है इस महीने आईसीयू में इतने बेड भरने चाहिए, ओटी खाली नहीं रहनी चाहिए, जो मरीज ओपीडी में है उसे भर्ती कराओ, चाहे जरूरत हो या ना हो। क्या हम डॉक्टर है या किसी इंश्योरेंस एजेंट की तरह कोटा पूरा करने वाले सेल्समैन? रोज मीटिंग होती है, कितने नए पेशेंट लाए, कितने टेस्ट लिखे, कितने रेफर किए सर्जरी के लिए। ना पूछो कौन बचा कौन गया, ना पूछो वाकई किसे इलाज की जरूरत थी। और मैं हर रात अपने आप से यही सवाल करता हूँ, क्या मैं अब भी डॉक्टर हूँ या फिर एक टारगेट फुलफिल करने वाला कर्मचारी? माफ करना, इंसान हूं मैं भी। मरीज को संख्या में गिनते गिनते कभी कभी खुद को भी गिनती में शामिल करने लगता हूँ। पर अब चुप नहीं रह सकता, अब जरूरी है पूछना, क्या हमारा सिस्टम बीमार है? क्योंकि इलाज अब सिर्फ मरीजों का नहीं, पूरे सिस्टम का। ये भी प्राइवेट हॉस्पिटल की सच्चाई है। और बाय द वे, प्राइवेट, अभी से प्राइवेट की बात कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट पे तो आया नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी इंडिया के ही हॉस्पिटल्स हैं, राइट? अभी तो प्राइवेट में ये हाल है, गवर्नमेंट में क्या होगा? आगे जो वीडियो देखोगे आप, वो है डॉक्टर्स की रियलिटी, कि डॉक्टर्स पे कितना स्ट्रेस है इंडिया के हेल्थ केयर में। कि पूरी कब्र में मरीज भरे पड़े हैं। यहाँ आपको कुत्ते और इंसान दोनों साथ सोते नजर आ जाएंगे। इस टनल का रास्ता जाता है देश के 2 सबसे बड़े हॉस्पिटल्स तक। यहाँ उल्टी, पॉटी, यूरिन तीनों की स्मेल एक साथ है। यस, दिस इज द ट्रूथ। कॉरिडोर में पेशेंट्स के पास वहीं वॉमिटिंग, वहीं स्टूल, वहीं मल्टीपल सिक पेशेंट्स हो रहे हैं। पर किसी ने उन डॉक्टर्स को देखा है जो उन कॉरिडोर्स में 30 से 36 घंटे खड़े रहते हैं? टर्शरी केयर सेंटर्स पे और सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स फैसिलिटीज ही नहीं है। रियलिटी चेक क्या है? इंडिया का डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो 1:1500 है। WHO रेकमेंड करता है 1:1000 का रेशियो होना चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स often run at 150 to 200% capacity। एक रेसिडेंट 80 से 120 पेशेंट हैंडल कर रहा है। 24 से 36 घंटे की ड्यूटी कॉमन है। स्लीप डिप्रिवेशन, डिसीजन फटीग डेली की रियलिटी है। अरे खाने के बारे में तो हम सोचते ही नहीं है। 100 बेड्स पे 250 पेशेंट्स आ जाते हैं। डॉक्टर्स बेड थोड़ी ना क्रिएट कर सकते हैं, फिर भी वही सेम डॉक्टर रिससिटेशन भी कर रहा है, सेम डॉक्टर ट्रीटमेंट भी प्लान कर रहा है, सेम डॉक्टर पेशेंट को सर्जरी के लिए भी लेके जा रहा है, वही डॉक्टर प्रोसीजर भी कर रहा है, ECG भी कर रहा है, सैंपल्स भी लेके जा रहा है। इट इज ट्रू दैट द पेशेंट्स आर सफरिंग, बट डॉक्टर्स भी साइलेंटली सफर कर रहे हैं। मैंने बोला ना, अमेरिका के हेल्थ केयर में 2 चीज़ें हैं, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। ये जो भी प्रॉब्लम्स इसने बताई है ना, अमेरिका के किसी हॉस्पिटल में नहीं होगी। अमेरिका कोई भी हॉस्पिटल ऐसा बर्डन में नहीं होगा कि लोग ज़मीन पे सो रहे हैं, पॉटी में सो रहे हैं, उल्टी में सो रहे हैं, ऐसा कभी कहीं पे भी नहीं होगा पूरे अमेरिका में। ये भारत के सबसे रेप्यूटेड हॉस्पिटल का हाल है। 3 डिग्री टेम्परेचर, जमीन पर सोते लोग, इनमें कैंसर, टीबी, हार्ट के पेशेंट्स हैं जिनका बस एक सपना है, एक सस्ता और अच्छा इलाज। ये सपना क्यों? राजस्थान में 2 लड़कों का एक्सीडेंट हुआ तो उन्हें नियरेस्ट हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल प्राइवेट था, यानी किसी गवर्नमेंट स्कीम से कवर नहीं था, लेकिन परिवार को था कि हमारा बच्चा बच जाए, तो हॉस्पिटल को इलाज करने को कहा। इलाज किया तो बिल फाड़ा 8.85 लाख रुपीस का। परिवार ने जैसे तैसे करके अपनी गहने, अपनी खेती की जमीन बेचकर 5 लाख रुपए इकट्ठे किए, लेकिन हॉस्पिटल के लिए वो काफी नहीं थे, तो उन्हें डिस्चार्ज करने से मना कर दिया और 2 महीने तक हॉस्पिटल में कैद करके रखा। ये हाल है देश में हेल्थ केयर का। ये वाली वीडियो उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं कि अमेरिका का हेल्थ केयर बहुत महंगा है। येस इट इज़, बट दिस इज़ वाई एवरीवन इन अमेरिका हैज़ इंश्योरेंस। इन लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं थी, बेचारे के पास घर बेचना पड़ गया, ज़मीन बेचनी पड़ गई, सड़क पे आ गए वो लोग, और फिर भी उनको कैद बना दिया गया हॉस्पिटल के अंदर। क्या नाम है आपका? इरविन कौर। क्या? इरविन कौर। इरविन कौर। आपका बेटा है मनराज, कितने साल का है? 2.5 साल का। अच्छा, कब चोट लगी थी? परसों रात को। फिर आप कहाँ लेके गए? भाग्यश्री हॉस्पिटल। वहाँ पे ट्रीटमेंट में क्या किया उन्होंने? वहाँ पे उन्होंने मेरे हस्बैंड से जो फेविक्विक हम घर पे यूज करते हैं, उन्होंने वो मंगवाई, और हमारे सामने उन्होंने इसकी चोट पे बिना कट साफ किए तो उन्होंने इसको फेविक्विक लगा दी थी। अच्छा, फिर टेटनस वगैरह का कुछ नहीं लगाया? हमने कहा था कि इंजेक्शन लगा दो, तो उन्होंने बोला कि नहीं, जरूरत नहीं है, सुबह लगवा लेना। तो हमने कहा कि इसकी ड्रेसिंग कर दो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चा ज्यादा रोएगा तो और दिक्कत होगी, कि इसकी ड्रेसिंग मत करवाओ आप। तो फिर हम उससे उसी टाइम दूसरे क्लिनिक पे लेके गए, तो उन्होंने भी इनफैक्ट हमें बोला कि फेविक्विक ऐसे कैसे कोई लगा सकता है, बट उन्होंने एक पट्टी तो कर दी थी कि ये हाथ ना मारे कम से कम। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग इसको 7, 7:30 बजे लोकप्रिय लेके गए, तो वहाँ डॉक्टर ने देखा और इसके जो कट था उसे दोबारा ओपन करके इसकी फेविक्विक सारी निकाली। 2-3 घंटे लग गए थे, और फिर इसको
4-5 स्टिचेस लगे चोट पे। तो उसमें से कुछ निकला? इसके जो घाव था उसमें आपने फेविक्विक के पीसेस निकले थे, जब सूख जाते थे तो वो निकले थे। उसके बाद भाग्यश्री हॉस्पिटल की आपने कोई कंप्लेंट या वहाँ गए आप? भाग्यश्री हॉस्पिटल मेरे हस्बैंड गए थे। जब उन्होंने वहां जाके उन सबको सुनाया तो उन्होंने आगे जवाब दिया कि हमसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर हस्बैंड ने सीएमओ ऑफिस में कंप्लेंट कर दी, एप्लीकेशन दे दी है। ये था इंडिया का एक प्राइवेट हॉस्पिटल, स्टिचेस के लिए फेविक्विक यूज़ कर लिया। वाह। This one heartbreaking video is enough to tell us how calling India the world's 4th largest economy is only good for headlines. It's enough to tell us the value of human life in our country. This elderly man in Madhya Pradesh's Sagar was forced to carry his sick wife to a hospital on a hand cart because he couldn't manage to get an ambulance. And because of a lack of this basic care, his wife died before she could even reach the hospital on the hand cart. The man Pawan Sahu sells vegetables on this hand cart for a living. A few days ago, when his wife fell sick, he went door to door and begged people to call an ambulance. He couldn't get one. His neighbors reportedly didn't even help him make a phone call to call an ambulance, and he obviously didn't have the money to get a private vehicle. So he had to make his hand cart a stretcher. He was running towards the hospital pulling the cart with his wife and didn't even realize that she died on the way. हो गई है भाई एम्बुलेंस में एम्बुलेंस नहीं आई थी। हाँ, फोन नहीं लगा पहले आया रात नहीं पहुंच पाए मारा। So while the government and the media celebrate India becoming the 4th largest economy and a Vishwa Guru, at Peak TV we'll keep bringing you such stories of the people who go unheard and unseen. ये है आम आदमी की वैल्यू इंडिया में, इंडिया के हेल्थ केयर के हिसाब से। क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं तो प्राइवेट में जाओ, अगर आपके पास पैसे नहीं है, जो कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, तो वो कहाँ जाएं? ये चीज़ें अमेरिका में नहीं होंगी गाइस। जो लोग यहाँ पे भी अमीर नहीं है ना, उनको गवर्नमेंट से मिलती है हेल्प। जैसे कि मैंने बोला, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। अगर आपके पास पैसे भी नहीं है ना, तो भी आपको ट्रीटमेंट मिलती है गाइस, एम्बुलेंस भी मिलेगी आपको। आपकी लाइफ की वैल्यू होगी अमेरिका में हेल्थ केयर में। मैडम साफ आ इतने लगे ना जाओ। और ये इंडिया के कुछ हॉस्पिटल्स की कंडीशन। कुत्ते आते हैं अंदर, चूहे आते हैं, चूहे के बाइट से बच्चे की मौत हो जाती है। आप लोग कहेंगे ये तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो ऐसे ही होते हैं, ऐसे होते तो उनको बंद करा दो ना। और आप बोलोगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मैं नाम ही क्यों ले रहा हूँ, प्राइवेट के बारे में बात करो। मैं इसलिए ले रहा हूँ नाम क्योंकि वो इंडिया के अंदर है। एक हॉस्पिटल है इंडिया के अंदर तो वो इंडियन हॉस्पिटल है, पाकिस्तान में तो है नहीं, इंडिया का ही है तो इंडियन हॉस्पिटल हुआ वो। अमेरिका में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, कुत्ते नहीं मिलेंगे, चूहे नहीं मिलेंगे हॉस्पिटल्स के अंदर। क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, जैसे कि मैंने पहले बताया वीडियो में। देयर इज़ द रीज़न यहाँ के हॉस्पिटल महंगे होते हैं, क्योंकि क्वालिटी मिलती है यहाँ पे। तभी दूसरे देशों से भी लोग आते हैं यहाँ पे इलाज कराने, जो ओनली दोज हु कैन अफोर्ड। देखिए जी, ITO का चौक है और यहाँ पे इन लोगों को सबको बोल दिया है कि पीछे एम्बुलेंस फंसी हुई है, लेकिन यहाँ पे आपका वोट दिया हुआ कोई नेता आ रहा है और ये देखिए पीछे एम्बुलेंस फंसी हुई है। यहाँ पे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये यहाँ पे पूरी ड्यूटी पर खड़े हुए हैं, पूरी जिम्मेदारी से हैं। इनके नेताजी पहुँचेंगे और नेता के लिए पूरा रोड क्लियर है, जो कभी जाम लगा होता था। और इंडियन एम्बुलेंस की हालत तो आप देख लो, इतनी देर में, जितनी देर में ट्रैफिक में फंसे हुए ना। अमेरिका में तो अब तक तो हॉस्पिटल पहुंच के पेशेंट को ड्रॉप भी कर दिया होता, इलाज भी शुरू हो जाता। एम्बुलेंस का ये हाल है, उनको रास्ता नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती जाने के लिए।
अमेरिका में ऐसा नहीं होता, वो तो सबको ही पता है, आपको भी पता है। रास्ता भी मिलता है, लोग जाने भी देते हैं और फटाफट पहुँचते हैं फटाफट। It's 5 a.m. in the morning, and I'm here to show you one of the ugliest realities of the fourth largest economy of the world. Close to 100 sick people are sleeping on the footpath here, right outside one of the biggest government hospitals of the country, AIIMS Delhi. The temperature is around 3 degrees Celsius in Delhi right now. I am currently wearing 5 layers. I'm not even able to move my hands properly. That's how cold it is right now, and we cannot imagine how these people are surviving here. Plastic sheets, sacks, polythene, whatever they could find, they've wrapped themselves with, because the shelters provided by the government outside AIIMS are full, and these people have not been able to find a place inside. These are not homeless people, mind you. These are people who have come from different parts of the country simply to get treatment from the All India Institute of Medical Sciences. They've come from states like UP and Bihar because the hospitals there didn't have the health facilities these patients need. They can't afford to go to a private hospital or get some accommodation while they're getting treated in Delhi. Some people have even told us that they've been living like this here for the last 2-3 months. Some are living here after just getting big surgeries, some with serious illnesses like cancer, heart diseases, and even mental disorders. These people, even in their illness, they've been forced to stay out, sleep under the open sky in this biting cold without even any proper blankets. ये पूरा गीला है कंबल जो इन लोगों ने ओढ़ा हुआ है, जो बच्चों ने ओढ़ा हुआ है सोने के लिए, पूरी तरह से गीला है. And this reality should make all of us think. Should religion and caste issues be the biggest points of discussion in a country where people have to put their lives at risk just to get basic medical treatment? And this is enough to tell us that while we celebrate becoming a Vishwaguru, this is the reality, the harsh reality of India's public health system. ये भी इंडिया का हेल्थ केयर है, ये इन लोगों की लाइफ की वैल्यू है। वहाँ पर कीड़े मकोड़ की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अगर ये अमेरिका होता ना, सड़क पर नहीं लेटे होते लोग, ये इनको भी प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला होता, प्रॉपर बेड्स मिले होते, प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिली होती। पर ये बात आपको उसने नहीं बताई भाई ने, और ये बात आपको इंडिया का कोई न्यूज़ चैनल भी नहीं बताएगा, क्योंकि उनको तो बस अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लोगों की लाइफ की भी वैल्यू है। अगर ये लोग अमेरिका में होते ना, इनको वैल्यू मिली होती, रिस्पेक्ट मिली होती और ट्रीटमेंट मिली होती। जस्ट बिकॉज इनके पास पैसा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग सड़क पे रहेंगे, सड़क पे सोएंगे, ऐसे इनह्यूमन कंडीशंस में रहेंगे ये लोग। बहुत वीडियोज़ हैं मेरे पास, ऐसी बहुत वीडियोज़ हैं, दिखा सकता हूँ बहुत सारी। वो मेरा पर्पज़ नहीं है, डिमीन करना मेरा पर्पज़ नहीं है। मेरा पर्पज़ ये है वो चीज़ें दिखाना जो इंडियन न्यूज़ चैनल आपको नहीं दिखाते। इंडियन न्यूज़ चैनल्स उस भाई की वीडियो दिखा रहे हैं क्योंकि उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिली, वो भी उसकी खुद की गलती से। अर्जेंट केयर और ER जा सकता था, वो नहीं गया, वो गया जनरल प्रैक्टिशनर के। 2 दिन बाद है उसको अपॉइंटमेंट मिली, गलती उसने करी ना, वो ER जा सकता था। तो इंडियन न्यूज़ चैनल आपको तो वो चीज़ें दिखाते हैं, ये चीज़ें नहीं दिखाएंगे। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ, क्योंकि दूसरों पे ब्लेम करने से पहले आपको खुद भी देखना चाहिए कि आप खुद भी कहाँ पर हो। अगेन मैं एग्री करता हूँ, इंडिया में डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट इंस्टेंट मिलती हैं, पर अमेरिका में भी बहुत जल्दी मिलती है। आपको बस प्रोसेस पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो उस भाई के जैसे आप भी वीडियो बनाओगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरे हाथ में फ्रैक्चर आ गया, नहीं देखा 2-2 दिन तक। और दोनों कंट्री के हेल्थ केयर में अच्छाई भी है, बुराई भी है। द चॉइस इज़ योर्स, आपको क्या पिक करनी है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसी वीडियोज़ और देखना चाहते हैं चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप कभी ना मिस करें। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में। बाय गाइस।